Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Vipasa Bose, the first professional MBBS student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. Guys, you don't know कि मेरा फर्स्ट प्रॉफ का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है इन द नेक्स्ट 10 days एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन माय हॉस्टल रूम नाउ बिकॉज मेरे को आज मौका मिला है, रूम में कोई नहीं है, दैट इज़ वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो टुडे. एंड यू नो हम लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत सारा पढ़ना है, बट स्टिल आई एम मेकिंग बिकॉज आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज से फॉलो किया था एंड मेरे को नीट में कौन कौन सी चैनल्स थी जिससे कि मेरे को हेल्प मिला था. फिर चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हो, एनसीईआरटी रिवाइज करने में हो, टेस्ट में हो, टिप्स एंड ट्रिक्स में हो, कुछ भी हो, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग जो कि मैंने किया था एंड जिससे कि मेरा नीट में एक ही बार में सिलेक्शन हो गया था. सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर करना शुरू किया था. तो आई वॉज इन माई 12th क्लास एंड मेरे को तब भी श्योरिटी नहीं थी कि मेरे को नीट ही करना है, लेकिन आई डिडंट वांट टू गो टू इंजीनियरिंग, दैट इज़ वाई आई जॉइंट यकीन बैच फॉर नीट 2021, जो कि मैंने ड्रॉपर्स बैच से एक मतलब आई वॉज फ्रेशर, फिर भी आई जॉइन दैट बैच बिकॉज इट वॉज फॉर 3500, दैट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. एंड तो सबसे पहले तो मेरा था वो मेरा मेन सोर्स था, वहाँ से मैं प्रिपेयर करती थी, नोट्स बनाती थी, वीडियो देखती थी रोज़ 2-2 घंटे की, 2-2 घंटे की 3 वीडियोस, लाइक 6 घंटे की वीडियोस आपको देखना होता था. एंड वो नेट का काम है तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लग जाएगा, स्लो होता है नेट, तो मेरे को 8-10 घंटे बस वीडियो देखने में लग जाते थे. तो उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, वहीं से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, डीपीपीस मिलते थे हमको, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी. जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई मैं उनको मार्क करके रख देती थी. तो मैं ऐसे शुरुआत करती गई. So many of you asked whether there is any app to practice MCQ and assertion reasoning questions. As you all know कि अभी नए नीट के पैटर्न में तो assertion reasoning वाले questions बहुत सारे पूछे जा रहे हैं. I found Memo NEET really beneficial and has almost 3000 plus assertion reasoning and multiple statement questions in biology. तो उन्होंने एग्जैक्ट नीट 2022 के पैटर्न में ही इसको फिक्स किया है. और लेट मी टेल यू व्हाई मेमोनीट is best because it has 30k questions that comes with special revision algorithm. Each question you practice in Memonit appears in regular intervals like first day, third day, fifth day. तो उनके टेस्ट में ये रिपीट होता रहता है एंड इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि वो आपकी मेमोरी में स्टोर रहेगा. So yeah, so they have unique features to practice formulae and named reaction. Chemistry section has two sections. For physical chemistry, formulae and organic name reaction. In this section, every formula is taken and divided into three questions. First, flashcard type to read and memorize the question. Second, match the elements to match with the right expansions. Third, jumble word question where you have to figure out right formulae equation from a group of jumbled words. This section just made learning formulae more fun and interactive than it ever had been. Please go and check it out because यहाँ मैंने देखा है कि the questions are very relevant to NEET and also NCERT. Oh my god. Same kind of formula section is available for physics formulas. You can learn the physics formula using that section and come back practice questions using the revised formula section. Memonit physics section has video lectures on all important topics and you can find 30 plus years of PYQs with video solution. For each PYQ, two similar PYQ questions were framed to help you recognize and recall the work method. In this NEET 2022, 96 out of 100 bio and 42 out of 50 chemistry and 30 out of 50 physics questions came from Memonit app. So you can understand how important this app was. The questions were either similar or directly came from this app. You can check the proofs in the app. Memonit test series is so unique. It is 100% NCERT based. You can solve subject wise, unit wise, full length test series for ultimate times. Even biology section is now available in Hindi. If you want to use this amazing app for your preparation, use my code BIPASA300 and get 300 off. मेरा शुरुआत बहुत ख़राब था, मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे क्वेश्चन. 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, 10 क्वेश्चन मेरे से सॉल्व बिल्कुल नहीं हो रहे थे. बट स्टिल आई डिडंट गिव अप. मैं चलती गई एंड रास्ते में वो कहते हैं ना कि आपको करना है तो आप निकल जाओ और रास्ता आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा. जस्ट वैसा ही हुआ मेरे साथ. मैं बस निकल गई एंड रास्ता मेरे को अपने आप दिखता गया. बीच में आई यूज टू डू क्वेश्चन फ्रॉम अदर थिंग्स लाइक फिजिक्स ऑफलाइन नोट्स. ये एक ऐप है जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया था व्हेन आई यूज टू फील वेरी डिमोटिवेटेड कि मेरे से फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे. तो आई जस्ट डिड मैंने इसको डाउनलोड किया,
फिजिक्स ऑफलाइन नोट्स। मैंने यहाँ के थ्योरीज थोड़ा बहुत पढ़ा था, वहाँ से मेरे को बहुत हेल्प मिला था। एंड उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि दे आर ऑल नीट रिलेटेड। तो आपको इधर उधर उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन नीट लेवल का है कि नहीं। आपको समझ लेना है, आपको सॉल्व करके भी देखना है। तो आई बिलीव कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहली ऐप फिजिक्स ऑफलाइन नोट्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिक्स वाला, ऑब्वियसली, एंड इट इज़ नॉट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ। तो फिजिक्स वाला में प्रीवियस क्वेश्चंस वहाँ पे दिए रहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो आपको ईयर वाइज, चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे उनके ऐप में फ्री बिल्कुल, और उनके सोल्यूशंस भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो लाइक 1992, 1988 वहाँ तक के क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिल जाते थे। तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब मैंने सॉल्व किया होगा वहाँ से। तो इतने साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते मेरे को कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो गया था। तो एट फर्स्ट मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। फिर जब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है, फिजिक्स वाला से करो, कहीं से भी करो, बट द थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है। एमटीजी के बुक्स आते हैं या फिर बहुत सारे और बुक्स आते हैं, आई डोंट नो द नेम, क्योंकि मैंने नोट्स कहीं से खरीदा नहीं था या फिर मैंने बुक्स कभी खरीदा था ही नहीं, तो आई डोंट नो द नेम। बट आई डिड फ्रॉम फिजिक्स वाला, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ में मिल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि तुम बुक से करो, अभी भी टाइम है, तो यू शुड बाई अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बुक, जिसमें आपको नीट 2022 तक भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद दोस ऑफ यू हु डोंट नो पार्थ गोयल, ही इज़ अ MBBS स्टूडेंट from a government medical college. So he is selling books, biohack, chem hack. तो उस बुक से आई डिडंट डू डैट, मेरे को पता नहीं था पहले उनके बारे में। तो व्हेन आई गोट टू नो कि उन्होंने ये सब बुक लॉन्च करा है, उनसे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिला है, इनफैक्ट बहुत बहुत हेल्प मिला है। तो आई फेल्ट कि यू शुड बी डूइंग दैट टू, या फिर अगर आपने कुछ बुक सॉल्व नहीं करा है तो यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ सॉल्व कर रहे हो तो यू शुड नॉट बाई एनी अदर बुक। लाइक अगर तुम एक ही फॉलो कर रहे हो तो एक ही बुक फॉलो करो, लेकिन अगर अभी तक किया नहीं है तो फिर यू कैन गो फॉर बायोहैक केम हैक 2 बाई पार्थ गोयल। अगर तुम्हें अभी एक शेड्यूल बनाना है, तुम्हारे पास कोई शेड्यूल नहीं है पर्टिकुलर, जैसे कि मेरे पास भी नहीं था, और ऐसा होता है कि जब आप खुद से शेड्यूल बनाते हो, लाइक 1 महीना का पूरा शेड्यूल बना लिया, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, फिर मैं ऐसा सोचने लग जाती थी कि यार तुझसे तो ये ही नहीं हुआ, तो फिर वो क्या हो जाएगा तेरे से। तो ऐसे तुम अपना दिमाग बहुत शैतान है, ये आपको बस बोलता रहता है कि तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होएगा। तो ये सब चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि किसी का बना बनाया हुआ शेड्यूल आप फॉलो करो। लाइक बायोलॉजी एट ईज ने मेरे टाइम पे शेड्यूल बना दिया था, लास्ट 2 मंथ शेड्यूल, लास्ट 1 मंथ शेड्यूल। तो ऐसे उसने बनाया हुआ था, तो फिर मैंने ट्राई किया था कि मैं वहाँ से फॉलो करूँ। लाइक इट इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। बायोलॉजी एट ईज, उसका पूरा चैनल ही बहुत अच्छा है बायोलॉजी के लिए, तो इट इज़ द बेस्ट चैनल आई वुड से। एंड जो शेड्यूल भी वो देती है एंड जो भी वो बातें बताती है, वो सब कुछ नीट से रिलेवेंट ही होता है। तो यू कैन ट्रस्ट हर ब्लाइंडली। एंड अगर आपको एक पुश चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, तो आपको आई वुड से कि यू शुड ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यू शुड ज्वाइन इट। तो मैंने फिजिक्स वाला से टेस्ट लेना शुरू किया था, तो अगर आपको कहीं से लेना है तो ले लो, आपको पहले मिल चुका है तो आप वहाँ से ही कंटिन्यू करो। तो यू शुड बी डूइंग इट वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज टेस्ट इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। ये रियलाइज़ करवाता है कि आप कितने पानी में हो। भले वो आप कहाँ से भी टेस्ट दे रहे हो, आपको अपनी पोटेंशियल टेस्ट दे के ही पता चलेगा। तो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। उसके बाद व्हाट आई डिड कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। सॉल्व मैंने कहाँ से किए, मैंने सबसे पहले तो अपना नोट्स जो मैं करती थी वहाँ से ही मैं सॉल्व करती थी। उसके बाद मैंने यहाँ वहाँ से भी थोड़ा सा नेट का हेल्प लेके मैंने नीट प्रेप, गूगल में सर्च करो नीट प्रेप बायोलॉजी एनिमल किंगडम क्वेश्चन, या फिर नीट प्रेप बायोलॉजी प्लांट किंगडम क्वेश्चन। तो आप बस सर्च करके टॉपिक का नाम लिख के आप कर दो, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नीट प्रेप आपको बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे देगा। उसके बाद अगर आपको साइकिल्स याद नहीं होती है तो बायोलॉजी एट ईज तो आपको करा ही देगा। अगर आपको वन शॉट भी चाहिए, आपको एक ही दिन में एक चैप्टर निपटाना है, तो यू गाइज कैन डेफिनेटली फॉलो रक्षिता सिंह। शी इज़ ऑल्सो एन MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। मेरे बहुत ही करीबी का कॉलेज है वो। ऑल्सो आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बट ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो करना ही है, आपको देखना है कि व्हाट सूट्स द बेस्ट फॉर यू। उसके बाद उम्मीद बैच भी ऑलरेडी है, या फिर नीट क्रैश कोर्स भी ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। बट लास्ट के 2-3 महीने में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट, रिवीजन, NCERT ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और अगर आपको NCERT के लाइन टू लाइन समझने में प्रॉब्लम आती है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू यू ऑल रक्षिता सिंह से जाके पढ़ना। एंड वो आपका पूरा एक एक लाइन आपको याद करा देगी। बिलीव मी विद दिस। फॉर फिजिक्स आई कैंट
टेल अ पर्टिकुलर नेम कि यहाँ से करो तो आपको सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि ये मैं सच बोल रही हूँ, मेरे टाइम में भी मेरे को कुछ नहीं मिला था कि मैं यहाँ से ही करूँगी तो मेरा हो जाएगा। तो थक हार के व्हाट आई डिड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फॉर्मूला नोट्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करो, वहाँ से टेस्ट के मिस्टेक्स को लिख डालो। तो यही सब चीज़ आई यूज़ टू फॉलो रिपीटेडली एंड इसी से ही मुझे हेल्प मिला था। तो इसीलिए आई कांट टेल अ पार्टिकुलर नेम फॉर इट, बट ये सब चीज़ें तुम करो तो फिर तुम्हारा फिज़िक्स में तुम्हारा मार्क्स इम्प्रूव होगा। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कुछ किया था, वो भी एनसीईआरटी से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रक्षिता पढ़ाती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स में जाना है, मोल कॉन्सेप्ट, इनऑर्गेनिक के कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड यू ऑल मोनिका बेदी मैम, जो यूट्यूब में फ्री अनअकैडमी में पढ़ाती थी और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। आई मेड माई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बाय स्टडिंग फ्रॉम हर। देखो, मैं तुम लोगों के लिए प्लानर तो नहीं बना सकती क्योंकि वो सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा, एक पार्टिकुलर चीज़ तुमको फॉलो करना होगा। इसके लिए तुम अपना भी कोई प्लानर बना सकते हो, लाइक व्हाट इज़ द पीक टाइम फॉर यू, या फिर अगर तुम एक नाइट पर्सन हो या फिर मॉर्निंग पर्सन हो, तो तुम्हारे लिए जो सूट करता है वो तुम अपने पेस में करो तो ही इट वुड बी द बेस्ट एंड इससे ही तुम्हें बेस्ट प्रोडक्टिविटी तुम्हारी मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी चाहिए कि कोई प्लानर बना दे या फिर शेड्यूल बना दे, देन आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि तुम बायोलॉजी एट ईज को जाके फॉलो करो, क्योंकि मैंने भी लास्ट के 2-3 महीने में आई डिडंट स्पेंड मच एनर्जी इन मेकिंग ऑल दिस थिंग्स। आई जस्ट फॉलोड हर टेबल लाइक शेड्यूल एंड उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक दिन में नहीं हुआ तो लास्ट का तुमने छोड़ दिया। ट्राई करना कि लास्ट तक फॉलो हो। एंड एट दिस टाइम तुम्हें फोकस करना चाहिए कि तुम्हें बस आज और कल के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि परसों का टाइम मिलेगा, क्या पता कल क्या हो। तुम्हें आज का दिन ही मिला है एंड आज ही तुम अपना बेस्ट दोगे। तुम 1 महीने तक का तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हो, क्या होगा नहीं होगा। तो व्हाट आई डिड कि मेरे को पता था मैंने आज क्या किया है और मुझे कल पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो आपको बस क्या करना है कि सोने से पहले आपको एक टू डू लिस्ट बना के सोना है, और ताकि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो कि आपको सुबह उठ के ये सब करना पड़ रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो उसमें बहुत सारा टाइम लॉस हो जाता है। पहले से ही तुम प्रिपेयर करके रखो वो चीज़, ताकि सुबह उठो, ओह अच्छा मुझे ये करना था, शुरू हो जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। और रात को सोने से पहले तो यू शुड डेफिनिटली रिवाइज एवरीथिंग मैन। बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, 5 मिनट। अपना दिमाग जो है ना बहुत शैतान है, इसको समझाना पड़ता है कि बस चुप हो जा तू, बस 5 मिनट के लिए मुझे देखने दे, उसके बाद सो जाएँगे और क्या। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है, दिमाग को समझाना है कि बस तू चुप कर, अभी मेरे को ये करना है, ये इम्पोर्टेंट है तो मुझे करने दे, और ये चुप हो जाएगा। मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जब भी कुछ करती थी, तो मेरे दिमाग में उल्टे-पुल्टे ख़्याल आने शुरू हो जाते थे, ये क्या कर रही थी, वो क्या कर रहा है। ये सबसे डिस्ट्रैक्शंस होती थी तो मैं अपने दिमाग को शांत करती थी, बोलती थी कि हो गया, ठीक है करने दे, जो करने दे, मेरे को क्या, मेरे को बस अपना नीट निकालना है, बस हो गया। आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर थिंग। तो ऐसे आपको अपने दिमाग को शांत करते रहना है एंड जो भी चीज़ आप फॉलो करो उसको रिलीजियसली फॉलो करो, ताकि यू गेट द रिजल्ट एंड टेल मी कि दी आपने बताया था, यहाँ से आपको हेल्प मिला था एंड मुझे भी यहाँ से हेल्प मिला है। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल दिस टू मी। जब आपका नीट निकल जाए तब आप कमेंट सेक्शन में आके लिखना कि दी सच में यहाँ से हम लोगों को बहुत सारा हेल्प मिला था, थैंक यू फॉर टेलिंग अस ऑल दिस। तो आई वॉन्ट कि तुम ये सब बोलो बाद में। तो जो भी चीज़ फॉलो कर रहे हो ना, रिलीजियसली फॉलो करो, उसको डीपली फॉलो करो, अच्छे तरीके से फॉलो करो, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। तुम्हें बायोलॉजी एट ईज में और भी बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा कंटेंट, रिवीजन के लिए भी एक एक चैप्टर आपको एक एक पेज में निपटाया हुआ भी मिलेगा। तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो हर। एंड रक्षिता सिंह से भी आप डिफिकल्ट टॉपिक्स कर सकते हो, प्लांट फिजियोलॉजी आपको वहाँ से करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक बुक खरीद लेना है। अगर आप बुक अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आप बाहर नहीं जा सकते तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, या फिर फ़ोन से आपको टैब से, आईपैड से, जो भी आपके पास है आप वहाँ पे डाउनलोड करके आप वहाँ से सॉल्व करते रहना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, मिस्टेक्स लिखते रहना। लास्ट के 1-2 महीने में आई डिड ओनली ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एक क्वेश्चन आपको तब तक करना है जब तक आप उसको खुद से बिना देखे सॉल्व नहीं कर लेते और लास्ट में आंसर तक नहीं पहुंच जाते। आप चलते तो जाते हो लेकिन आप आंसर पहुंचने से पहले ही आप रुक जाते हो। इतना भी पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर लास्ट में नीट में कैसे आंसर निकाल के आओगे। तो आंसर निकालना बहुत ज़रूरी है। लाइक तुम लास्ट में बोलोगे कि मेरे से आंसर नहीं निकल रहा था, क्यों? क्योंकि तुमने टेस्ट में या फिर तुम प्रिपरेशन के टाइम में आंसर नहीं निकाल के चले जाते थे, इसलिए तुम्हारा लास्ट नीट में आंसर नहीं निकला था, क्योंकि तुमने कभी अच्छे से लास्ट तक सॉल्व किया ही नहीं था। तो लास्ट तक सॉल्व करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है सब कुछ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने एलन का एक हैंड बुक आता था, वो मुझे ऑनलाइन मिल गया था लकीली। देख लो, अगर तुम लोगों को भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है।
वो मुझे मिला था ऑनलाइन, पता नहीं कौन सा वेबसाइट से मुझे बस ऐसे मिल गया था। उसमें एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऐसे करके एनसीईआरटी के एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और बिलीव मी, जब मैंने वो करना शुरू किया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ भाई एनसीईआरटी के इस लाइन से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने ट्रस्ट मी, बायोलॉजी में मैंने हद पार कर दी थी सारी। मैंने नीट प्रेप से भी क्वेश्चन करा था, फिजिक्स वाला से भी क्वेश्चन करा था, टेस्ट से भी क्वेश्चन करा था, और मैंने एलन का भी सॉल्व किया था। डेट इज़ वाई आई बिलीव कि मेरे को बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर मिले, एंड टू बी ऑनेस्ट बायोलॉजी से ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इसीलिए जो चीज़ ईजी है उस चीज़ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्या पता उसी चीज़ से आपको सिलेक्शन मिल जाए। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको सही रखनी है, और बायोलॉजी को भी आपको एक नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपको ओएमआर शीट, टाइमर, टेस्ट सीरीज सबको टाइम लगा के आपको फिल करके आपको करना है, और नीट का जो रिसेंट पैटर्न है आपको उसी में सॉल्व करना है। सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज गॉट सम हेल्प, एंड भूलना मत, जर्नी को एंजॉय करो। एंड अगर आपको कुछ भी हेल्प मिला हो इस वीडियो से या फिर मेरे कोई भी वीडियो से, देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज इट मेक्स माई डे इन एंड इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज फॉर यू ऑल। एंड या देख सकती हो तुम कि मैं कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि मैं अपने एग्जाम को छोड़ के मैं शूट कर रही हूँ। सो या दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल, हैव ए वेरी वेरी happy preparation. I will be back after a month. So yeah, bye.